Hello friends, how are you? I hope you people are doing fine. My name is Jay Chandani and I'm from Tarkshastra Academy. Today we are going to talk about everything about IPMAT Indore exam. That includes about IPMAT Indore, number of seats, eligibility criteria, exam syllabus, exam pattern, IPMAT cutoff 2024, fees, placement, and the most important, other colleges that accept IPMAT exam. तो प्लीज दोस्तों लास्ट तक बनिए रहेगा एंड लेट्स बिगिन. Okay, so let's try to know about what's IPMAT Indore exam, right? So IPMAT stands for Integrated Program for Management Aptitude Test. The exam, which is conducted by IIM Indore, started in the year 2011, right? And the exam is for integrated program which is offered by IIM Indore. The mode of exam is online and the language of exam is English, right? If we talk about the seats, the total number of seats that IIM Indore offers is 150. And the eligibility criteria, so the eligibility criteria is the only thing which is stopping you from joining IIM is your age, right? क्या है eligibility criteria? That you should be born on or after August 1st, 2005. Now this is for students who are gonna give the exam in the year 2025, right? So they must be a student who has born on August 1st or later. They are eligible for the exam. Rest everything is good, right? Okay, another thing is that 5 years of relaxation has been given for SC, ST, PWD category. Qualifying exam, so you should have passed standard 12th higher secondary education or equivalent examination in 2023, 2024 or 2025. That means you will be appearing in that year. Now this is to also note boards such as international boards and ICSE, they are also eligible for the exam, right? There is another thing is that there is no minimum percentage in either 10th or 12th. This is wonderful, right? अगर आप लोगों ने कुछ भी पाप कर रखे अपने 10th और 12th में, irrespective of that, आप लोग eligible हो इस एग्जाम के लिए, ठीक है? Selection process कैसा है? So the selection process is twofold, right? There are two stages of selection to IPM program in IIM Indore. The first one is that it conducts entrance exam, जो IPMAT Indore के नाम से जानी जाती है, जो हमें देना रहेगा. And the second one is personal interview, right? हम लोगों का एक personal interview होगा और फिर उसके बाद जो final merit list है वो बनाई जाती है composite score करके. कैसा रहता है कंपोजिट स्कोर? तो आपने जो एप्टीट्यूड टेस्ट प्रेजेंट किया है उसके 65% मार्क्स जोड़े जाएंगे और आपके पर्सनल इंटरव्यू के 35% मार्क्स जो है वो कंबाइन होंगे कंपोजिट स्कोर को बनाने के लिए. सो इफ यू टॉक अबाउट द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस, द एग्जाम इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस. फर्स्ट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, शॉर्ट आंसर्स टाइप के क्वेश्चंस होते हैं. सेकंड इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एमसीक्यू, which is multiple choice question. Third is verbal ability. Now the number of questions which are there in each three of the sections are 15 questions in short answers type question, 30 questions in MCQ quantitative aptitude, and 45 questions in verbal ability, making the total of 90 questions. The time limit is 40 minutes each. Now there is sectional time limit, है ना? तो हर सेक्शन में 40 मिनट्स मिलेंगे और आप लोग एक सेक्शन खत्म होने के बाद दूसरे सेक्शन में वापस से नहीं जा सकते. ओके, सो दिस इज टू बी नोटेड. द मैक्सिमम मार्क्स दैट अ स्टूडेंट कैन गेट फ्रॉम द होल एग्जाम इज 360. And there is the one more interesting thing is that yes, you get plus for each correct answer and -1 for each wrong answer. But the first section, which is short answers, which is also theta based questions, type in type answer, there is no negative marking. okay, तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है. 15 क्वेश्चन है. यस, थोड़े से हार्ड जरूर आते हैं, क्वेश्चंस थोड़े से अबव लेवल के रहते हैं, पर द गुड पार्ट इज
कि यहाँ पर अगर आप लोग थोड़ा सा सेंस रखते हैं, ऑफ कोर्स वो आपके करिकुलम में आप जब जब पढ़ते हैं तो उसके साथ डेवलप होता है, आप ये वाले क्वेश्चंस को डेफिनेटली अटेम्प्ट कर सकते हैं और देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस सेक्शन. If we move forward to the exam pattern and to the exam syllabus, क्या क्या है एग्जाम सिलेबस में? सो क्वांटिटी, ऑफ कोर्स दो ही सेक्शंस हैं अगर देखा जाए तो, एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है और एक और जो है दैट इज वर्बल. अच्छा, एक और चीज नोट करने वाली है पीछे वाले में ही, दैट इज कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो कि एमसीक्यू वाले हैं उसमें 30 क्वेश्चंस हैं, उसमें हर साल एक पैसेज जो रहता है दैट इज डेटा इंटरप्रिटेशन, राइट. वो कभी कभार लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड डेटा इंटरप्रिटेशन भी होता है और यूजुअली इट इज डेटा इंटरप्रिटेशन जिसमें अरिथमेटिक का पोर्शन जो है आप लोग अच्छे से पढ़ते हैं. एंड ऑफ कोर्स दिस द क्वेश्चंस आर बेस्ड आउट ऑफ ग्राफ्स. ओके, सो दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट थिंग. क्या है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस? सो इफ वी टॉक अबाउट द टॉपिक्स, मेनली 5 टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे. एक तो नंबर्स, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, अरिथमेटिक प्रॉब्लम और अरिथमेटिक एंड मॉडर्न मैथ. मॉडर्न मैथ में यू कैन ऑल्सो इंक्लूड हायर मैथ्स, राइट. Numbers में there would be factorial, successive division, cyclicity and remainder, simplicity, divisibility, remainder. Okay, algebra में हमें quadratic equation, logarithm is a chapter जो हमें पढ़ना रहेगा. तो to all the non-math student, yes, logarithm हमें पढ़ना रहता है, लेकिन this is just a little part of it, right? Functions and graphs, HCF, LCM, geometry में angles, lines, triangles, circles, quadrilaterals, a bit of conic too, right? Coordinate geometry and height and distance, trigonometry. Arithmetic में of course पूरा syllabus which comprise of average, percentage, profit and loss, ratio, proportion, mixture and alligation, time and work, time, speed and distance. Modern maths में we will be studying set theory, sequence and series, matrices and determinants, probability, permutation and combination, a bit of integration and differential equation, and data interpretation is something that we will be going through. ये हो गया हमारे मैथ्स का सिलेबस. वर्बल का सिलेबस क्या है? तो वर्बल के सिलेबस में we are gonna see 4 topics mainly, that is vocabulary, जिसमें we will be going through synonyms, antonyms, spelling errors, odd one out, idioms and phrases, OWS, that is one word substitution, foreign words, word usage. Okay, this is the whole part जहां पर आप लोगों को vocabulary में काफी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ती है, राइट. वोकेबलरी आपको सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आपको बल्कि वोकेबलरी हेल्प करती है रीडिंग कंप्रहेंशन में भी. ठीक है, रीडिंग कंप्रहेंशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है. ऑलमोस्ट 2 से 3 पैसेजेस आते हैं रीडिंग कंप्रहेंशन के, विच इज समवेयर अराउंड 12 क्वेश्चंस. 45 में से 12 इज अ वेरी मेजर पार्ट, राइट. ग्रामर हमें करना रहेगा, जहां पर ग्रामर का कंप्लीट सिलेबस वुड बी अ पार्ट. एंड वर्बल एबिलिटी, जिसमें एरर स्पॉटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस कंप्लीशन, पैरा जंबल्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एनालॉजीज, ये हम लोगों का सिलेबस बनता है वर्बल का. ठीक है, तो नाउ दैट वी हैव गॉन थ्रू द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस, लेट्स मूव. सो लेट्स टॉक अबाउट द फी स्ट्रक्चर दैट द कॉलेज हैज. तो यहां पर आप लोगों को जानने की जरूरत है कि आपका जो करिकुलम है वो 3+2 में डिवाइडेड होगा. That is 3 is your undergraduate degree, that means BA, Foundation in Management, and the second is like the 2-year program is MBA itself. Now आपका 3 साल कंप्लीट होने के बाद जो IIM इंदौर में IP मैट के जो स्टूडेंट्स हैं वो लोगों को मर्ज कर दिया जाता है with the MBA students, right? Now they have given 3 years की fees. So the fees for 3 years, the first 3 years is this, which is for the first year it is 6 lakh rupees, 6,04,679 rupees. For the second year it is 5,54,679 rupees, and for the third year it is again 5,54,679 rupees, which almost accounts to 17 lakhs. तो 3 साल की जो हमारी फीस है वो 17 लाख के आसपास होती है, और बाकी जो 2 साल की फीस है वो उस साल में जो भी MBA की फीस रहेगी उसके अकॉर्डिंग रहेगा. ठीक है, लेट्स मूव टू द प्लेसमेंट रिपोर्ट. नाउ
IIM इंदौर, इट्स वन ऑफ द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट इन इंडिया, राइट। और उसमें भी 12th के बाद अगर आप लोगों को डायरेक्टली IIM इंदौर जाने का मौका मिलता है तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। वाई? बिकॉज यू गेट अमेजिंग प्लेसमेंट। अगर हम लोग बात करें 2023-25 वाली जो बैच निकली है अभी, ठीक है, सॉरी 2023-2025 वाली जो बैच है, जो करंटली MBA कर रहे हैं अपना, जो IPMAT 3 साल अपना कंप्लीट कर चुके हैं, उनके समर प्लेसमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो उनका हाईएस्ट स्टाइपेंड जो है दैट इज 6.6 lakhs, which is increased from 10%, right? And the average stipend is 2.25 lakhs, median stipend is 2.12 lakhs. The top 100 students is the stipend for top 100 student is 3.97 lakhs, and for top 200 students is 3.49 lakhs, which is huge, right? Summer placement में भी अच्छा पैसा मिल जाता है, so you can, if you are towards the highest earner of stipends, आप शायद अपनी एक सेमेस्टर की, एक ईयर की फी जो है IPMAT की, वो आप शायद अपने जेब से दे सकते हैं, right? The domains which are available for summer placements are 23% general management, HR and operations, 23% consulting के companies आई हैं, 20% finance, 24% sales and marketing, 10% IT analysis, जो कि काफी अच्छा है। आई गेस हर जगह ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आप जिस भी डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं आपको हर जगह की कंपनीज मिलेगी। फॉर 22-24 बैच, जो MBA की 22-24 बैच निकली है इस साल, जो पास आउट हुए हैं, उनमें हाईएस्ट प्लेसमेंट जो गया है दैट इज 1 crore, राइट? दैट्स अ ह्यूज अमाउंट, है ना? एंड द एवरेज CTC इज 25.68 lakh per annum, and median CTC is 24.5 lakhs per annum, right? Top 100 students have got 37.33 lakh per annum, and top 200 have got 32.91 lakh per annum. The domain is again equally distributed, almost equally distributed, with majority of companies taking part, they are coming for HR and operations and consulting, right? Let's move forward to the cutoff, right? बहुत important है IPMAT का cutoff 2024 का जो गया है वो जानना। That helps you to understand कि किस तरीके से हम लोगों को एग्जाम को अप्रोच करना है। एंड टू बी ऑनेस्ट, एग्जाम जो है, अगर मैं बात करूं, इट इज ऑलवेज अ वेरी, द प्रोसेस इज क्वाइट इजी अगर आप लोग डेली थोड़ा बहुत पढ़ते हैं और अपनी स्ट्रेटेजी सही बनाते हैं कट ऑफ के अकॉर्डिंग। सो इट इज डेफिनेटली एन एग्जाम जो कि अचीवेबल है। या द कॉम्पिटिशन इज हाई, दैट्स वन थिंग। So if we talk about general category, short answers में जो cut off गया है that is 24 marks, MCQ में जो cut off गया है that is 35 marks, and verbal ability में जो गया है that is 113 marks, ठीक है? Now this is good, that means 6 क्वेश्चन सही करे short answers के out of 15, तो आप लोग cut off क्लियर करते हैं। ऑलमोस्ट 12 क्वेश्चन सही करें, और इस बार तो एक क्वेश्चन जो है वो वापस से ले लिया गया था, उसके लिए सबको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट हुए थे। तो 30 में से अगर 12 क्वेश्चन सही करें, विच इज नॉट 50% ऑल्सो, तो आपको 35, तो आप इसका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करते हैं। एंड 45 में से क्लोज टू 27-28 क्वेश्चन सही करने रहते हैं, तब आपको आपका वर्बल का सेक्शन भी क्लियर होता है। Though it is to be also noted कि सेक्शनल कट ऑफ के साथ साथ ओवरऑल कट ऑफ भी जाता है एग्जाम का, एंड इट हैज बीन अ पैटर्न जो कि देखा गया है। एक बारी बच्चे एलिजिबल तो हो जाते हैं सेक्शनल कट ऑफ और ओवरऑल कट ऑफ के बाद, पर इंटरव्यूज के बाद यूजुअली जो कंपोजिट स्कोर बनता है उसमें स्टूडेंट स्कोरिंग समवेयर अराउंड 200 मार्क्स, टोटल की बात कर रहा हूं, somewhere around 200 marks जो भी स्कोर करता है, they have a very good chance if they give a good interview. Now the thing which we were waiting for, है ना, कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो कि IPMAT इंदौर का एग्जाम कंसिडर करते हैं फॉर एडमिशन इनटू देयर कॉलेज, राइट? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लिस्ट, क्योंकि हम लोग समझते हैं कि यार IPMAT इंदौर में जो सीट्स है दैट इज 150, राइट? हम लोग में से सब अगर प्रिपेयर करते भी हैं तो नॉट एवरीवन ऑफ अस कैन रीच देयर, बट ऑफ कोर्स द एग्जाम्स गिव्स यू अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, है ना? और वो कौन कौन से कॉलेजेस हैं?
The topmost is Indian Institute of Management Ranchi. IIM Ranchi. Yes, IIM Ranchi जो है उसका खुद का एग्जाम नहीं होता है. IIM Ranchi जो है वो IPMAT इंदौर के ही एग्जाम्स के थ्रू अपने IPM कोर्स में बच्चों का सिलेक्शन करता है. Institute of Management, Nirma University. It is a top-notch university based in Ahmedabad. बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है जिसने अपना प्रोग्राम ऑलमोस्ट 2019 के आसपास स्टार्ट करा था IPM का, एंड दे आर डूइंग गुड, राइट. डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, नालसा यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ. नाउ टू ऑल दी स्टूडेंट्स, आई गेस क्लैट के स्टूडेंट्स नालसा जानते हैं. नालसा इज अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी फॉर लॉ. इसके लॉ के कॉलेज के लिए जो एडमिशन प्रोसेस रहता है दैट इज थ्रू क्लैट. They have recently started their Department of Management Studies and it's a very good college. Definitely a college जिसमें बहुत अच्छे प्रोफेसर्स हैं. तो ये कॉलेज डेफिनेटली आने वाले टाइम में बहुत अच्छा आउटशाइन करेगा, राइट. एंड इट टेक्स एडमिशन थ्रू IPMAT इंदौर. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, IIFT. अब आप लोगों ने IIFT का नाम जो है वो सुना होगा दिल्ली और कोलकाता के नाम से, राइट. बट IIFT काकीनाडा जो कि एक नया सेंटर है, राइट, that has also started IPMAT का प्रोग्राम. स्पेशलिटी ऑफ दिस प्रोग्राम इज कि यहाँ पर जिस तरीके से IIFT दिल्ली और कोलकाता अपना MBA प्रोग्राम भी रन करते हैं विच इज ऑन इंटरनेशनल बिजनेस, यहाँ पर भी इंटरनेशनल बिजनेस का ही प्रोग्राम आपको थोड़ा सा इंट्रिंसिक इंटरनेशनल बिजनेस पे फोकस किया जाता है, राइट. तापमी यूनिवर्सिटी बैंगलोर और मणिपाल ये भी IPMAT इंदौर के थ्रू सिलेक्शन प्रोसेस करते हैं. देन निकमा यूनिवर्सिटी पुणे. तो टू ऑल दी स्टूडेंट्स जो कि पुणे में है, निकमा इज अ गुड यूनिवर्सिटी जो कि IPMAT के थ्रू सिलेक्शन ले रही है बच्चों का. इनका भी IPMAT प्रोग्राम जो है काफ़ी अच्छा चल रहा है. सो डेफिनेटली अ कॉलेज जो कि हमारी लिस्ट में होना चाहिए. एंड देन IFMR चेन्नई विच इज अगेन अ वेरी गुड कॉलेज जो IPMAT के थ्रू सिलेक्शन लेता है. नाउ यस, हम लोगों ने इसके बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करी है, लेकिन यस वी आर डेफिनेटली गोना मेक मोर वीडियोज ऑन ऑल दिस कॉलेजेस. बहुत ही कंप्रेहेंसिव वीडियोस बनाएंगे हम लोग. तो प्लीज आप लोग हमें सब्सक्राइब करें एंड डू सजेस्ट अस कि हम लोग कौन से टॉपिक पे वीडियोस बनाएं. हम लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बनाएंगे आप लोगों के लिए एंड वी विल इंश्योर कि आप लोगों के पास सारी इंफॉर्मेशन रहे फॉर UG एग्जाम्स, IPMAT एग्जाम्स. थैंक यू. जय हिंद.